رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم طویل ترین زبور 119 کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہوں گا۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے آپ ہمیں 119ویں زبور کے متعلق بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں کہوں گا کہ زبور 119 خدا کے کلام کے حوالے سے ہے، اور اس میں 176 آیات ہیں، اور میں کہوں گا کہ اس کی زیادہ تر آیات خدا کے کلام کے متعلق ہیں، سوائے چند ایک آیات کے، اور ان آیات کے علاوہ آپ کو تمام آیات خدا کے کلام کے حوالے سے ملیں گی، اس کی تاثیر، اہمیت اور قوت کی بات کرتے ہوئے۔ زبور میں حروف تہجی موجود ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک عبرانی شاعری کا طریقہ ہے۔ عبرانی زبان اس طور پر ممتاز ہے کہ چند مزامیر اس میں حروف تہجی کے مطابق ہیں، جنہیں انگریزی میں ایکروسٹک کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی آیت کے پہلے حرف سے شروع ہوتا ہے اے، اور دوسری آیت کا بھی، اور تیسری آیت کا بی سے شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح آگے بھی جاتا ہے، مطلب کہ پہلا حرف۔ لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ زبور میں اس کی تقسیم 22 حصوں میں کی گئی ہے، اور عبرانی میں 22 حروف تہجی ہیں، ہر حصے میں 8 آیات ہیں۔ ہر آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم پہلی 8 آیات میں دیکھتے ہیں کہ تمام آیات، مطلب کہ ساری آیات لفظ الف سے شروع ہوتی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی 8 آیات بے سے شروع ہوتی ہیں، اور اسی لیے اردو میں پہلے حصے کا آغاز الف سے ہوتا ہے، اور اگلی آیات کا بے سے ہوتا ہے، اور پھر اس نے اگلی 8 آیات جیم سے، اور اگلی 8 دال سے، اور اسی طرح تفسیر میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تقسیم ہمیں نبوتی کلام کے طور پر بتاتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہمیں نئے عہد نامے کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ ہر حرف کے اندر 8 آیات ہیں، اور 8 کا عدد جدت کا عدد ہے، اور جیسے کہ 7 کا عدد کاملیت اور خاتمے کا عدد بالکل ہے۔ 7 دن اور 8 دن ایک جدید ہفتے کا آغاز ہے، اور 7 سر موسیقی کے، اور 8واں سر میں کہوں گا کہ یہ سر جدید سر ہے۔ اسی طرح میں کہوں گا کہ 8 کا عدد جدت کا عدد ہے، اور پھر عہد جدید میں تمام 22 حروف تہجی خدا اور اس کے کلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور یہ خدا کے کلام میں یرمیا کی نبوت کی تکمیل ہے، اور میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، لہٰذا اس وقت لوگ فقط خدا کے کلام اور نئے عہد نامے کی بات کریں گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام ان کے دلوں پر نقش ہو گیا، اسی لیے تمام حصوں کی تمام آیات 22 حروف تہجی کے ساتھ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کی ہر بات اور تمام گفتگو خدا کے کلام سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ سچ ہے۔ لہٰذا اس زبور کا بنیادی موضوع خدا کا کلام ہے۔ بھائی یوسف، اس میں کچھ مترادف الفاظ بھی ہیں، مثلاً تیرے کلام، تیری شہادتیں، تیرے قوانین۔ ہمیں بتائیے، تیرے الفاظ کیا یہ مترادل الفاظ ہیں یا نہیں، یا ان الفاظ کے مطالب ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ دیکھیں، خدا کے کلام میں مترادف الفاظ نہیں ہیں، اس اصول کو یاد رکھیں۔ بہرحال میں کہوں گا کہ ہر ایک بات کا ایک خاص مقصد ہے۔ تیرے احکام تیری باتوں سے یا تیرے قوانین سے مختلف ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص مطلب ہے۔ صحیح۔ اگر ہم پہلے حصے کو دیکھیں جس میں 8 آیات ہیں، جو الف سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خدا ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اس آیت پر کچھ تبصرہ کیجیے۔ دراصل 5 زبور ایسے ہیں جو مبارک سے شروع ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر ہم کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ صرف ایک اور زبور باقی رہ گیا ہے، اور میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مزامیر زبور 1، زبور 32، زبور 41، اور پھر اس کے بعد زبور 119 اور زبور 128 ہیں۔ اور زبور 1 کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی یعنی واحد فقط وہی ہے جس کی مانند اور کوئی
नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ये मसीह है। ये मुबारक कोई और शख्स नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो कभी किसी शरीर की सलाह पर ना चला हो। तो क्या हम खोए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अगले ज़बूर में लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता, जिसने गुनाह किया लेकिन उसकी अदालत ना हुई, क्योंकि उसके बदले मसीह ने जान दी और उसकी कीमत को अदा किया है। वो मुतबादल कौन है? आए हम अगले ज़बूर को देखते हैं। लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। मसीह जो सलीब पर लटकाया गया वही सबसे बड़ा गरीब है, और जो उसे ईमान और कदर की निगाह से देखते हैं वो उस माफी को पाएगा जिसकी जरूरत है। हम ज़बूर 22 में ये पढ़ते हैं। सो ज़बूर 1 में हम मसीह को देखते हैं, और ज़बूर 32 में निजात याफ्ता गुनाहगार को, और ज़बूर 41 में निजात का रास्ता, और ज़बूर 19 में यह है कि ये निजात याफ्ता शख्स जिंदगी कैसे गुजारे। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदा की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। और जब हम ज़बूर 128 पर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि फक्त वही नहीं है जो मुबारक हैं, बल्कि उसका घराना भी मुबारक है, क्योंकि वो दीनदार है और खुदा से डरता है। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। ज़बूर 119 सब ईमानदारों के लिए बरसों से एक खास मुकाम रखता है। जॉन रक्सन ने अपनी आखिरी उम्र में कहा कि बाइबल के तमाम हवाला जात में जो मेरी माँ ने मुझे पढ़ाए, उस वक्त मेरे नन्हे जहन के लिए मुश्किल तरीन और सबसे उलझाने वाला ज़बूर 119 था, जो कि अब मेरी जिंदगी में बाइबल का सबसे कीमती और अहम हवाला बन चुका है। खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 9वीं आयत में लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाए रखे तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाए रखे? वैसे मैं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन हम इस तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं बस आपको इशारा दूंगा कि अब्रानी में हर एक हर्फ की एक अददी वक़्त और अहमियत है। हर्फ अलिफ जिससे पहली 8 आयात शुरू होती हैं, और इस हर्फ का मतलब है बैल, और इसकी वजाहत में ये बताया गया है कि दरअसल बैल एक पाक जानवर है जिसकी कुर्बानी गुजरानी जाती है, और ये सबसे बड़ी कुर्बानी भी है। ये पाक जानवर क्यों है? इसकी सबसे पहली वजह यह है कि ये जानवर चुगाली करता है, और दूसरा इसके पाँव चिरे हुए पाँव हैं। और हम पहली 8 आयात में देखते हैं कि चुगाली करने से मुराद यह है कि एक शख्स खुदा के कलाम की चुगाली करता है, और चिरे हुए पाँव से मतलब यह है कि वो अपनी राहें दुनिया की शरारत से अलग करता है। और अगली 9वीं आयत से 16वीं आयत तक कहा जाता है कि लफ्ज है बैत, और मैं कहूँगा इसको घर कहा जाता है। और हम जानते हैं कि जो शख्स घर में दाखिल होता है उसे पाकीज़गी को मानना है। ज़बूर 93 की आखिरी आयत में लिखा है कि आए खुदावंद ज़िबा है। अब्दुल आबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेब है, और हमारी खातिर बैल को ज़िबा किया गया ताकि हम घर में दाखिल हो सकें। लेकिन मैं कहूँगा कि हमें घर में कैसे दाखिल होना चाहिए, या मैं ये कहूँगा कि बैल हमें खून के वसीले पाक होने के मुतालिक बताता है। और पानी से पाक करने की बात क्या है? हमें एक दूसरी तरह की पाकीज़गी चाहिए जो पानी के वसीले से है, जिसके मुतालिक लिखा है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। और खून, मैं कहूँगा कि हर एक इंसान की ज़रूरत है कि वो खुद को खुदा के कलाम से पाक करे, और ख़ास तौर पर जवान शख्स को। और इस ज़बूर का मुसन्निफ भी जवान था, क्योंकि वो जवानी के आयाम पर बहुत ज़्यादा गौर करता है। सो इस मिलावट ज़दा दुनिया में जवान अपनी रविश किस तरह पाक रख सकता है? जवाब है तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। और मसीह ने कहा, अब तुम उस कलाम के
जो मैंने तुमसे किया पाक हो। सो मसीह की कुर्बानी के वसीले हम घर में दाखिल हो पाए, और घर के अंदर कदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है, और हमें पाक और मुकद्दस करने का जरिया और रास्ता खुदा कलाम का है। कलाम, पर सही। घर पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि हम परदेसी भी हैं। 9वीं आयत के तीसरे हिस्से में, जो गीमल से शुरू होता है, लिखा है, मैं ज़मीन पर मुसाफिर हूँ, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख। मुसाफिरों के लिए क्या है? हर्फ गैम्बल का मतलब है ऊंट, और हम ये जानते हैं कि ऊंट सहरा का एक जानवर है। ये सफर को जाहिर करता है। और जब रिबका इजहाक से मंगनी करके सफर को निकली, तो उसने ऊंटों की सवारी की और अपने दुल्हा के पास पहुंची। गोया अब हम अपने आसमानी दुल्हा मसीह के पास जाते हुए सफर में हैं, और हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं जो कि बियाबान है। लिहाजा लिखा है कि मैं जमीन पर मुसाफिर हूँ, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख। एक मुसाफिर को तसल्ली की जरूरत है। तसल्ली क्या है? तसल्ली तेरे अहकाम के अंदर है, और इसीलिए इस हिस्से की आखिरी आयत में लिखा है, तेरी शहादतें मुझे मरगूब और मेरी मेरी मुशीर। मुशीर हैं, क्योंकि हमारे सफर के वक्त खुदा का कलाम ही हमारी तसल्ली का मंबा है। चलिए, जो अगला हिस्सा है, दालत की तरफ आते हैं। 25वीं आयत में लिखा है, मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। इससे क्या मुराद है? मैं इसमें खुदा के कलाम को देखता हूं जो हमें संभालता है। और जो बात आयत 25 में लिखी है कि तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर, मुझे जिंदा कर की ये बात इस जबूर में 9 मरतबा आई है। खुदा का कलाम जिंदगी देता है। बहरहाल कलाम खुदा जिंदगी बख्श है। सो यहाँ बात ये नहीं कि तू मुझे जिंदा कर, क्योंकि हमने खुदा के कलाम के वसीले जिंदगी हासिल कर ली है। लेकिन इस जिंदगी को सहारा कौन देता है, संभालता कौन है, जिंदा कौन करता है? और मैं कहूंगा, इस जिंदगी की नई खुराक क्या है? रोटी नहीं है, क्योंकि वो बदन की खुराक है। और नई जिंदगी के लिए एक दूसरी किस्म की खुराक चाहिए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हिस्सा है आयत 37, मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। यहाँ वो मिन्नत कर रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत सारी बातों को हम बहतान कह सकते हैं, और अगली आने वाली आयात हमें दुनिया के सख्त तरीन बहतानों के मुतल्लिक आगाह करती हैं। लिखा है, मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, ताकि लालच की तरफ ना जाए। लोग दौलत, रुपए, पैसे और नफे की तरफ भागते हैं, लेकिन मेरी आंखों को बहतान पर नजर करने से बाज रख। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला। इससे हमें लूका के 16वें बाब की एक बड़ी आयत याद आती है। हम इस बाब में पढ़ते हैं जो मसीह ने कहा, कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। फरीसी जो जरदोस्त थे, वो इन सब बातों को सुनकर खुदा के कलाम को सुन रहे थे। खुदा का कलाम कौन सुन रहे थे? लेकिन दौलत के लालची थे। वो उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। उन्होंने मसीह को ठट्ठों में उड़ाया जो बात कर रहा था। उन्होंने मसीह के कलाम की कदर ना की, क्योंकि वो दौलत के लालची थे। और मेरा ईमान है कि अगर कोई दौलत का लालची हो, तो जब वो आपसे कहता है कि चर्च में आए, जबरदस्त इबादत और कलाम वहां है, तो वो कहता है खुदा का कलाम क्या है? आओ रुपए, पैसे और दौलत के लिए कुछ करते हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, ना कि लालच की तरफ। मेरी आंखों को बहतान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। हिस्सा वाओ 45वीं आयत 46वीं आयत, और मैं आज़ादी से चलूंगा, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूँ। मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूंगा और शर्मिंदा ना होऊंगा। आप खुदा के कलाम की रोशनी में इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि वो हमें बता रहा है कि मैं खुदा के कलाम से कैसे मोहब्बत रखता हूं। और बहुत से लोग हैं जो कलाम की पाबंदी को समझते हैं, पर वो कहता है मैं आजादी से चलूंगा, क्योंकि मैं तेरी कवानीन का तालिब रहा हूं। और अगर आपको खुदा के कलाम से मोहब्बत है, तो आपको ये पाबंदी या फिर बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको खुदा के कलाम से मोहब्बत है। और मैं आजादी से चलूंगा, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। और इसीलिए याकूब के खत में एक अच्छी बात लिखी है, लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर करता रहता है। और मैं कहूंगा कि कुछ लोग बाइबल को पाबंदी समझते हैं, और अगर हम उन्हें बाइबल से कोई हदायत देते हैं, तो वो कहते हैं अभी हमारी कोई उम्र नहीं कि हम खुदा के कलाम के चक्कर में लग जाएं। हम जवानी में इन पाबंदियों को क्यों मानें?
लेकिन यहाँ जबूर नवीस जो एक जवान आदमी है ये कहता है, और मैं आजादी से चलूंगा क्योंकि मैं तेरे कवानीन का आजादी तालिब के रहा कवानीन हूँ। का। तो इसका मतलब यह है कि वो उसके कलाम पर खुश था और उसे पाबंदी या बोझ नहीं जानता था। उसके कलाम से जुड़े रहने के नतीजे में वो कहता है, मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का और बयान शर्मिंदा ना करूंगा होगा। और शर्मिंदा ना होऊंगा। कलाम को पेश करने वाला बादशाहों के सामने खड़ा हो जाता है। सही। हिस्सा ज़ैन 54वीं आयत। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरा गीत रहे हैं, आए खुदावंद। रात को मैंने तेरा नाम याद किया और तेरी शरीयत पर अमल किया है। ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना। मेरे ख्याल में ये वही बात है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि खुदा का जिंदा कलाम कोई बोझ नहीं है। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरे गीत रहे हैं। और यहाँ जबूर नवीस ये कहता है कि मैं मुसाफिर खाना में हूँ, इसीलिए अपने शानदार और हैरान कुन काम को मुझसे ना छुपा। लिहाजा हम इस कलाम से महजूज होते हैं। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरे गीत रहे हैं, इसका मतलब है कि तेरे अल्फाज जिन्हें लोग बोझ समझते हैं, जबकि मैं समझता हूं कि वो मेरे मुसाफिर खाना में गीत हैं और मैं एक मुसाफिर हूं, और मेरे पास वो पानी है जो मुझे खुशी और तकवीयत बख्शता है, यानी कि तेरा कलाम और आइन। कोई भी मुसाफिर नक्शा खो देता है तो वो खोया हुआ महसूस करता है, और जब खो देता है तो उसे वतन की याद आती है और वो खुद को अजनबी महसूस करता है। सही। यहाँ वो मुसाफिर जिसके पास खुदा का कलाम है, ना सिर्फ उसके पास सफर में एक रहनुमा है, बल्कि वो उसे उसके वतन की याद भी दिलाता है। सो तेरे आइन मुसाफिर खाने में मेरे लिए गीत हैं। जी भाई। जी, ये भी कहा जाता है कि जब मुसाफिर अपने वतन से दूर कहीं एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अपने घर ही की बातें करते हैं। आप जो आसमान पर जाते हैं, सुनिए, मैं और मेरा दिल उन्हीं बातों के तालिब हैं जो मुझे खुश करें। उनसे आप मुझे तसल्ली देते हैं। निजात दहिंदा और उसके वादों और उसकी मोहब्बत का जिक्र करें कि वो आएगा। और यही बातें ईमानदार मुसाफिर करते हैं। जबकि वो अपने घर से दूर हैं तो वो अपने घर ही की बात आपस में करते हैं। इसी तरह तेरे आइन हमारे लिए गीत हैं। सही। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 63वीं आयत है, मैं उन सब का साथी हूँ जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे काम पर या पड़ोस में कोई दोस्त नहीं होने चाहिए, फ़क्त दीनदार ही मेरे साथी हों? भाई यूसुफ, क्या हमें फ़क्त खुदा के कलाम को जानने वालों के साथ रहना चाहिए? मैं कहूंगा कि हदूद का लफ्ज हे से शुरू होता है। इब्रानी में इस लफ्ज का मतलब एक बाड़ या फिर दीवार है। गोया यह हिस्सा हमें उस हद के मुतल्लिक बताता है जिससे हमें पार नहीं जाना। और ये एक बहुत ही उम्दा हद है कि मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं और तेरे कवानीन मानते हैं। यकीनन हमारे काम में भी हमारे साथी जरूर होंगे और किसी के साथियों पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि किसी का भी साथी या फिर किसी का भी दोस्त होने के लिए जरूरी है कि उन्हीं का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं, यानी कि मैं उनका साथी बनूं जो सच में खुदावंत से डरते हैं। सो मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं। इमसाल 13 में लिखा है, जो दानाओं के साथ चलता है वो दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। और मैं ऐसे शख्स का साथी होकर क्या पाऊंगा जो मसीह से मोहब्बत नहीं रखता और उसकी कदर नहीं करता, और मैं उस ताल्लुक से क्या फल पाऊंगा? दर हकीकत मुझे कोई रूहानी बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसी चीजें मिलेंगी जो तजलील का सबब बने। मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं। अगर मुझे खुदा से मोहब्बत है तो उनसे भी है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, और उनसे भी है जो खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं। सो जब हम दुनिया में चलते हैं तो ऐसी बातों की तलाश करें जिनमें दोनों की दिलचस्पी हो। जी लेकिन सही। अगर मैं खुदावंत से मोहब्बत रखता हूं और वो खुदावंत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मुझे बाइबल से मोहब्बत है लेकिन वो उसे नहीं समझता, तो हमारी ज्यादातर बातें किस बारे में होंगी? मैं उसे ऊपर नहीं खींचूंगा लेकिन वो मुझे नीचे खींच लेगा। सही। हिस्सा तीत। भाई यूसुफ, 66वीं आयत में लिखा है, मुझे सही इम्तियाज और दानिश सिखा।
क्योंकि मैं तेरे फरमान पर ईमान लाया हूँ। सही इम्तियाज से क्या मुराद है? क्या इसका मतलब भला या नेक मिजाज होना है, या बाइबल में इसका कोई और मतलब है? मैं कहूंगा कि इसमें दो बातें हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मैं सही इम्तियाज या दानिश कहाँ से सीखूं? दरअसल बाइबल हमें खुदा की फितरत और खुदा के मुतल्लिक वाज़े तौर पर आगाह करती है, और फिर ये अजीम खुदा जिस्मानी तौर पर मुजस्सम हुआ और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। मुजस्सम हुआ। मसीह को देखें और उससे सही इम्तियाज करना सीखें जिसके मुतल्लिक ज़बूर 45 में कहा गया है कि तू इब्ने आदम में सबसे हसीन है, तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदावन ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया। और देखें कि वो जिनसी मुखालिफ के साथ किस तरह पेश आता है। उसने खवातीन के साथ कितना अच्छा सलूक किया और उनको इज्जत दी अपने हर काम में भी। तभी जब वो एक ऐसी औरत को उसके पास लाए जो जिना करते वक्त पकड़ी गई, उसने जमीन पर झुककर अपनी उंगली से कुछ लिखा। हम मसीह से सही इम्तियाज और अखलाकियात सीखते हैं और हम औरों को जवाब देना सीखते हैं। इब्रानी लफ्ज का एक और मतलब भी है, और ये वो भी हो सकता है जिसकी हमें तलब है कि मामलात में सही इम्तियाज रखना, और ये हमें कलाम में मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं और हम उसके शागिर्द बनते हैं, और हम जानते हैं कि हमें सही इम्तियाज कैसे करना है और दूसरों से कैसे पेश आना है। भलाई का सलीका और इम्तियाज हासिल सही। करें। लिखा है, तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी, मुझे फहम अता करता कि तेरे फरमान सीख लूं। आप इसमें क्या देखते हैं? यहाँ पर मैं कहूंगा कि दरअसल योद के हर्फ का मतलब है हाथ, और इसीलिए इसकी शुरुआत कुछ यूं होती है कि तेरे हाथ ने मुझे बनाया और तरबियत दी। और मैं इसमें देखता हूं कि हम सब उसकी हाथ की सन्नत हैं। उसने हमें बनाया और तरबियत दी है, और इसीलिए उसके अलावा हमें कोई संवार या फिर हमें कोई सुधार नहीं सकता। कहा जाता है कि अमेरिका में एक शख्स अपनी गाड़ी में हाईवे पर ड्राइविंग कर रहा था और उसकी गाड़ी खराब हो गई, और वो नहीं जानता था कि वो क्या करें। उसकी गाड़ी पुरानी फोर्ड कार थी, और एक भला शख्स उसके पास आकर रुका और उससे ये कहने लगा कि भाई क्या मसला है। उसने बताया कि इस कार के साथ फलां फलां मसला है। उस शख्स ने उसकी गाड़ी को कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया। वो नहीं जानता था वो कौन है। जब उसने पूछा तो उसने कहा, मैं मिस्टर फोर्ड हूं और मैंने इस मशीन को डिजाइन किया है। इसीलिए उसे अपने डिजाइन के बिगाड़ को सही करना बहुत ही आसान था। सही। और इससे हम यही सीखते हैं कि अगर मुझ में कोई खराबी है तो तेरे हाथों ने मुझे बनाया, तरतीब दी है, मतलब कि तू मेरा बनाने वाला है, तू सब जानता है। सो जब कहीं कोई खराबी आती है तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं सीधा उसके पास जाऊंगा जिसने मुझे बनाया है, जिसने हमें तख्लीक किया है, और वो हमारे बिगाड़ को दुरुस्त करना जब मैं चाहता थका है। मांदा हूं तो मैं तेरे सिवा किसके पास जाऊं? और जब मजलूम हूं तो तेरे सिवा कहाँ जाऊं? और जब बिल्कुल मैं गुनाहगार या उल्झा हुआ या परेशान हूं तो तेरे सिवा किसके पास जाऊं? तेरे बिल्कुल। हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी। दी। शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। चलिए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? खुदा का कलाम पाक करता है और धोता है, और हमारे सफ़र में हमें आराम बख्शता है जब हमसे आसमानी घर का तज़किरा करता है, और हमारे लिए मुफीद होगा। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, मेरी आंखों को बुतलान पर नजर रखने से बाज रख। किस्त के इख्तिताम पर मेरी दुआ है कि मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिलाए, ना कि लालच की तरफ। वो मुझे अंदर बाहर से जानता है, वो मेरी जिंदगी की हर बात से वाकिफ है। तेरे हाथों ने मुझे बनाया है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ। खुदा आपको बरकत अगली दे। किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, आज की किस्त में हमने सीखा कि यह ज़बूर खुदा के कलाम की बात करता है, जिसकी शुरुआत यूं होती है कि मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। और हमने सीखा कि हर्फ अलिफ, जिसका मतलब बैल है, उसने हमें खुदावंद के घर में दाखिल किया या खुदावंद के साथ ताल्लुक में कायम किया। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा के साथ ताल्लुक में कायम होने का कोई इम्कान ना था, ना खुदा की बरकतों ही को पाने का, सिवाय मसीह की कुर्बानी के। लिहाजा खोए हुओं को घर वापस लौटने के लिए एक कुर्बानी की ज़रूरत थी, और खुदा ने सलीब पर अपने बेटे की कुर्बानी दी। मसीह वो अजीम ज़िबा किया हुआ बर्रा है, वो अजीम कुर्बानी जिसकी बुनियाद पर खुदा मुझे और आपको माफ़ करता है। अगर आप खुदा तक रसाई चाहते हैं, अगर आप खुदा की इबादत करना चाहते हैं, उसके साथ सकूनत करना चाहते हैं,
تو مسیح کی قربانی کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ مسیح کو قبول کریں، اس کی ہستی، اس کے کام کو قبول کریں، اور آپ کا استقبال خدا کی حضوری میں کیا جائے گا۔ آنے والی قسط میں ہم زبور 119 کے مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي. مين زيك يسامح، مين زيك يداوي، مين زيك يحن، مين زيك يسامح، مين زيك يداوي، مين زيك يحن، مين غيرك يقول للشيء كن فيكون، مين غيرك قادر على هد محصول، مين غيرك يقول للشيء كن فيكون، مين غيرك قادر على هد محصول، مين بالحب يروي القلب من الينبوع، مين غيرك يسامح بالحب يا يسوع. حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي